अब जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज इफ a इज अ सबसेट ऑफ n नेचुरल नंबर देन a इज काउंटेबल। हम सभी जानते हैं a set a is said to be countable set if it is either finite set और डिनोमिनेबल set। तो देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन है इफ a is finite and any set which is finite set that is countable, this means a is countable। अब जो सेकंड है इफ a is infinite, if a is infinite set then and जो a है दैट इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, तो हम बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर n on to a, and if there is a bijection between natural number and set a, then set a we know that then set a is denominable, this means set a is denominable। and any set which is denominable is also called countable set, this means a is countable set। तो हम बोल सकते हैं इन एवरी केस आइदर ए इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ए इज ऑलवेज काउंटेबल सेट। अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं और इसकी स्टेटमेंट है सपोज दैट S and T are two sets and that S is a subset of S, then first part is if S is a countable set then T is a countable set, और इसी प्रकार if T is uncountable set then S is an uncountable set। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। तो इसमें मान लीजिए let us given that जो T है is a subset of S and S is countable and S is countable। अब any set which is countable उस पे दो ऑप्शन होते हैं, आइदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए व्हेन इफ S is finite and every subset of a finite set is also finite, this means T is finite and every finite set is countable, so we can say that T is countable। and the second option is if S is denominable, if S is denominable, देखिए if S is denominable then the elements of S can be written in the form of this S equals, then S can be written S1 comma S2 comma S3 comma S4 that is so ये। अब ऑप्शन है टी पर। तो मान लीजिए इफ टी इज फाइनाइट
अगर टी फाइनाइट है तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स टी इज काउंटेबल। और इफ टी इज नॉट फाइनाइट, इफ टी इज से इनफाइनाइट and T is a subset of S है, तो जो एलिमेंट्स हैं T के, देन जो देखिए जो S के एलिमेंट है दैट इज A1, A2, A3 दैट इज सोन, ये है। अब T इज इनफाइनाइट सेट, तो जो T के एलिमेंट होंगे वो इनमें से ही होंगे। तो मान लीजिए देन T इक्वल है T1, T2, T3, T4 दैट इज ये है। और यहां पर जो एलिमेंट है वो एक्चुअली में S1 है, S1, S2, S3, S4 दैट इज सो ये है। और यहां पर जो T1 है वो किन में से है, S1, S2, S3 इनमें से है। तो वेयर जो Ti है वो बिलोंग्स करेगी S से फॉर ऑल I। ये अब अगर हम डिफाइन कर दें, डिफाइन a function phi from set natural number to set t by कि जो phi of n है that is equal tn है, तो आप ये पाओगे कि this function is bijection, then phi is bijection from natural number n to set t, and any set which has a bijection with the set of natural number is said to be denumerable set. Then this means t is denumerable. That is denumerable set, and the set which is denumerable उसको हम काउंटेबल बोलते हैं। This means t is countable. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एज सेट हमारे पास काउंटेबल है तो इसका जो सबसेट होगा दैट इज सेट टी, वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब जो नेक्स्ट है दैट इज इफ टी इज अनकाउंटेबल सेट देन एस इज अनकाउंटेबल सेट। तो देखिए, तो मान लीजिए इफ पॉसिबल लेट टी इज that S is countable set. तो if S is countable तो यहां से क्या मिलेगा, this means it is subset and its subset is T. This means T is also countable. और हम given था कि जो ये है सेट T है वो तो अनकाउंटेबल था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं S कैन नॉट बी काउंटेबल सेट एंड एनी सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज सेड टू बी अनकाउंटेबल सेट। तो हम ये बोल सकते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम बोल सकते हैं हेंस S is not countable means S is uncountable, and this is our required answer. अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट है
suppose that S and T are two sets and that S is a subset of S. Then first part is, if S is a countable set then T is a countable set, और इसी प्रकार if T is uncountable set then S is an uncountable set. तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं. तो इसमें मान लीजिए let us given that जो T है is a subset of S and S is countable and S is countable. अब any set which is countable उस पे दो ऑप्शन होते हैं, either it is finite और infinite. तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे. तो मान लीजिए when if S is finite, S is finite and every subset of a finite set is also finite. This means T is finite and every finite set is countable. So we can say that T is countable. And the second option is if S is denumerable. If S is denumerable. देखिए if S is denumerable then the elements of S can be written in the form of this. S equals, then S can be written S1, S2, S3, S4, that is so on. ये अब ऑप्शन है टी पर. तो मान लीजिए इफ टी इज फाइनाइट, अगर टी फाइनाइट है तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स टी इज काउंटेबल. और इफ टी इज नॉट फाइनाइट, इफ T is say infinite and T is a subset of S है, तो जो एलिमेंट्स हैं T के, देन जो देखिए जो S के एलिमेंट है दैट इज A1, A2, A3, दैट इज सोन. ये है. अब T इज इनफाइनाइट सेट, तो जो T के एलिमेंट होंगे वो इनमें से ही होंगे. तो मान लीजिए देन T इक्वल है T1, T2, T3, T4, दैट इज सोन. ये है. और यहां पर जो एलिमेंट है वो एक्चुअली में S1 है, S1, S2, S3, S4, दैट इज सो. ये और यहां पर जो T1 है वो किन में से है, S1, S2, S3 इनमें से है. तो वेयर जो Ti है वो बिलोंग्स करेगी S से फॉर ऑल I. ये अब अगर हम डिफाइन कर दें, डिफाइन अ फंक्शन फाई फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू सेट टी बाय कि जो फाई ऑफ एन है दैट इज इक्वल टी एन है. तो आप ये पाओगे कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन. देन
phi is bijection from natural number n to set T, and any set which has a bijection with the set of natural number is said to be denumerable set. Then this means T is denumerable. That is denumerable set. And the set which is denumerable उसको हम काउंटेबल बोलते हैं. दिस मीन्स T इज काउंटेबल. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एज सेट हमारे पास काउंटेबल है तो इसका जो सबसेट होगा दैट इज सेट T, वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा. अब जो नेक्स्ट है दैट इज इफ T इज अनकाउंटेबल सेट देन S इज अनकाउंटेबल सेट. तो देखिए, तो मान लीजिए if possible let T is that S is countable set. तो if S is countable तो यहां से क्या मिलेगा, दिस मीन्स it is subset and its subset is T. This means T is also countable. और हम गिवन था कि जो ये है सेट T है वो तो अनकाउंटेबल था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो हम बोल सकते हैं S कैन नॉट बी काउंटेबल सेट एंड एनी सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज सेड टू बी अनकाउंटेबल सेट. तो हम ये बोल सकते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. तो हम बोल सकते हैं hence S is not countable means S is uncountable and this is our required answer. चलिए अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट थ्योरम को, दैट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. मीन्स इफ S is a countable set then this implies there exists a subjection of natural number onto S. अब जो given है that is S is countable set. If S is countable set then there are two possibilities. Either S is finite or S is infinite. तो देखिए, तो हम प्रूव करेंगे कि A implies B. तो let A implies B. तो मान लीजिए लेट S is countable set. S is countable. And if S is countable then there are two possibilities. Either S is finite or infinite. तो assume that, तो फर्स्ट ये है when S is finite and any finite set can be written in the form of like this. Means if S is finite then S can be written in the form of this S1 comma S2 comma S3 comma that is shown SK. ये लिख सकते हैं. अब हमने प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट अ सबजेक्शन. यहां पर सबजेक्शन है, देयर एग्जिस्ट अ सबजेक्शन. Surjection means onto function. So there exists a onto function of natural number onto S. तो देखिए, then define f is a function from natural number to set S by f of n equal, that is यहां पर Sn होगा Sn
कब होगा? इफ द वैल्यू ऑफ n lie between 1 and n-1 मीन्स इफ 1 से ग्रेटर या इक्वल है n बट लेस देन है k से, एंड दिस इज इक्वल टू sk इफ द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल k, यस। तो आप यहां ये पाओगे कि जो हमारे पास रेंज है वो सेट S है, बिकॉज F1 की इमेज S1 है, F2 की इमेज S2 है, दैट इज सोन, और Fn-1 की इमेज Sk-1 है। लेकिन जो बाद वाले एलिमेंट है उन सभी की इमेज क्या है? Sk है। इसको आप एग्जांपल की मदद से समझ सकते हो। जैसे ये हमारे पास सेट S है एंड द एलिमेंट्स इन इट लाइक दिस S1, S2, S3 that is going on, Sk-1 and Sk, this is, and this is our natural number, means 1, 2, 3, that is on K-1, K plus 1, that is so, ये है। तो हमने डिफाइन ऐसा किया है कि S1 1 मैप टू S1, 2 map to S2, 3 map to S3, that is shown, K-1 map to Sk-1, but K maps to Sk, K plus 1 maps to Sk, तो जो सभी इमेज है K plus 2 maps to Sk। तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि जो रेंज है, रेंज ऑफ F, that is equal to S, and this is what? This is the codomain. This is the codomain of the function f. So then this means equal to codomain. And if the range of any function is equal its codomain, then we say that this is a onto function. This means f is onto function. तो हमने प्रूफ क्या कर दिया? हेंस इफ A is true, this implies B is true. अब हम मानकर चलेंगे कि assume that B is true and we have to prove that C is also true, means B implies C. तो देखिए, तो let B is true. B is true means that is let f is a function from set natural number S to set S is onto, and we have to prove that there exists a function, say Z, which is from S to N, that is 1. तो देखिए यहां पर, तो इसको ना एक बार आप पिक्चर की मदद से समझ लीजिए। जैसे अगर हमारे पास ये नेचुरल नंबर n है एंड दिस इज आर सेट S, और इसके अंदर जो एलिमेंट है जैसे 1, 2, 3, 4, दैट इज सोन, और जो इसके अंदर एलिमेंट है वो मान लीजिए S1, S2, S3, S4, दैट इज सोन। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है बिकॉज इट इज अ सर्जेक्टिव, मीन्स जो कोडोमेन है वो इक्वल है रेंज के, मीन्स 1 मैप टू S1, और इट मे बी पॉसिबल दैट 2 मैप टू S1 और 3 मैप्स टू लाइक S2 and 4 maps to S2, और लाइक दिस 5 मैप टू S3, ऐसा भी हो सकता है और ऐसे होगा। अब अगर हम कोई एलिमेंट्स चूज करें फ्रॉम सेट S, लेट S belongs to set capital S, then जो F इनवर्स S होगा,
अब जो ये सेट है वो नॉन एम्प्टी होगा, बिकॉज इफ S बिलोंग्स टू कैपिटल S देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स इन नेचुरल नंबर हुज इमेज मैप टू S। तो यहाँ पर जो F इनवर्स होगा वो एक सेट होगा और उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, देखिए नेचुरल नंबर मैप्स टू S, तो S की जो प्री इमेज है वो नेचुरल नंबर होंगे, मींस इसके अंदर वो नेचुरल नंबर आएंगे सच दैट कि जो f ऑफ n वो किसके इक्वल हो, S के इक्वल हो। अब आप डिफाइन कीजिए एक फंक्शन, डिफाइन और आप मान लीजिए लेट जो NS है बी द लीस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, लीस्ट एलिमेंट ऑफ F इनवर्स S। इसको आप ग्राफ की मदद से ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जो 1 है दैट मैप्स टू S1 एंड 2 मैप्स टू S1। तो जो S1 की F इनवर्स S है, यहां पर F इनवर्स S है, दिस कंटेन 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2। तो हमने जो इसमें लिस्ट एलिमेंट है दैट इज 1, उसको क्या मानना है, दैट इज NS सिलेक्ट करना है। अब अगर हम फंक्शन डिफाइन करें, डिफाइन G is a function from set S to natural number by कि जो G of S है वो किसके बराबर है, दैट इज NS। तो ये फंक्शन है, ये वेल डिफाइन तो होगा, देन G इज वेल डिफाइंड। or any function is said to be well defined if its image is only one, means जैसे ये हमारे पास 1 2 3 है एंड दैट इज से ABC। तो अगर 1 की इमेज ओनली A है मींस यूनिक है, तब ये वेल डिफाइन होगा। इफ 1 मैप्स टू 1 एंड A एंड B देन दिस फंक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इफ वी डिफाइन इनवर्स रिलेशन, तो जो S1 है S1 मैप टू 1, S2 मैप टू 3 एंड S3 मैप टू 5, ये है। तो S1 अंडर दिस फंक्शन G वो किस पर मैप करेगा, वो 1 पर ही मैप करेगा। एंड 1 इज, क्योंकि 1 लिस्ट एलिमेंट है तो 1 इज लिस्ट एलिमेंट एंड लिस्ट एलिमेंट इज यूनिक, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। अब इसको 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए हम, तो 1 1 के लिए मान लीजिए लेट S T 2 एलिमेंट्स ले लीजिए सेट S के अंदर सच दैट कि जो G ऑफ S है वो इक्वल है G ऑफ T के। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि S इक्वल T है तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि दिस फंक्शन इज 1 1। तो इसको आप मान लीजिए M, और जो G ऑफ S इक्वल M है तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, तो दिस फंक्शन इफ G ऑफ S इक्वल M है तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, दिस मीन्स कि F ऑफ M वो किसके बराबर होगा, दैट इज S के बराबर। और इसी प्रकार इफ G ऑफ T इक्वल M है, दिस मीन्स
f of m is equal to p. Since here and here f of m, तो हम यहाँ बोल सकते हैं from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 I have s equal t. और हम लेकर यही चले थे कि the image of s and t are equal and we have to prove that s and t are also equal. तो हमने यहां से ये प्रूव कर दिया. This means z is 1 1. ये है. और हमने यहां प्रूव ये कर दिया कि b implies c करेगा. अब जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो गिवन होगा दैट इज देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन ऑफ s ऑन टू n, और हमने जो प्रूफ करना है दैट इज s इज अ काउंटेबल सेट. तो ये प्रूव करना है. तो अब मान लीजिए देयर इज एग्जिस्ट एन इंजेक्शन ऑफ s ऑन टू n. तो लेट f is a function from s on to n, from s on to n b 1 1. और हमने प्रूफ करना है कि जो फंक्शन जो सेट s है दैट इज काउंटेबल सेट. अब उसके लिए देखिए तो देन जो f ऑफ s है, जो रेंज ऑफ फंक्शन f वो क्या होगी, दैट इज सबसेट ऑफ n नेचुरल नंबर होगी, बिकॉज रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड दैट सेट नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट. दिस इंप्लाइज f of s is countable. And if f of s is countable, then there are two possibilities. Either s is finite or either f of s is denumerable. तो देखिए वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं. तो मान लीजिए लेट इफ f of s is finite, then f of s, the set f of s can be written in the form of like this: f of s1 comma f of s2 comma f of s3, that is shown f of sk. And if f of s is this means जो s1 s2 s3 that is shown sk, they are from the set s. This means s is equal to s1 s2 s3 that is shown sk. And if the set is like this, so this is finite, means s is finite and every finite set is countable, that means s is countable. अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज f of s is denumerable. If f of s is denumerable, then f of s can be written like this: f of s1 comma f of s2 comma f of s3 comma that is so. And if f of s is can be written in this way, where s1 s2 s3 belongs to s, तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स कि जो एलिमेंट ऑफ s है दैट इज मस्ट बी s1 s2 s3 that is shown, and the elements like this is known as
denumerable set means S is denumerable and every denumerable set is countable. This means S is countable. तो हम मानकर चले थे कि जो f इज अ फंक्शन है वो क्या है 1 है फ्रॉम सेट S to N. तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि S इज काउंटेबल है मीन्स हमने प्रूव किया C implies A. तो हमने देखिए क्या प्रूव किया कि A implies B फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में B implies C और फिर थर्ड पार्ट में C implies A. मीन्स हमने सर्कुलर पाथ में ये प्रूव कर दिया. और अगर कोई भी 3 स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है कि ये इक्विवेलेंट है तो हम हर बार यही प्रोसीजर अपनाएंगे.